Hey, welcome back, MB aspirants. Welcome to this new video. So, guys, this is the episode 3 of the video series that we had launched, wherein we talked about individual sections. We talked about what strategy should be used for the preparation. We talked about helpful tips, the problems that arise, and important topics. So, this is the last video of this series, wherein we'll be talking about quants as a section. So, let's get started, guys. So the agenda for today will be discussing the topics to be covered, then types of questions that are asked in this particular section, then how to practice. We'll be discussing exactly with respect to the non-engineers part 2, wherein they feel that their quants is a very weak section. Okay, we'll also talk about some of the relevant sources that you can refer and problems faced in quants by the non-engineers. This is the most hot topic that I get to hear every day, and then helpful tips. So guys, how to prepare? So the type of question first, let's understand the type of question. You might be aware there are two types of question in CAT. So majorly quants में अगर आप देखते हो तो दो type of questions आते हैं, TITA based and MCQ. So TITA based is type in question जहाँ पे आपको options नहीं मिलता है, आपको सीधा आपका आंसर type in करना पड़ता है. एंड नॉर्मल MCQ क्वेश्चंस जिसको आपको नॉर्मली 4 to 5 ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं. तो गाइज जो टीटा बेस्ड क्वेश्चन होता है उनका प्रो एंड कॉन्स ये है कि ऑफ कोर्स कॉन्स सबसे बड़ा ये है कि वी डोंट गेट ऑप्शन, तो हमें पता नहीं चलता है हमारा जो आंसर निकल के आया है वो राइट है या रॉन्ग है. ठीक है, कभी कभी डेसिमल्स वाले भी ऐसे आ जाते हैं जेरिन योर आंसर इज कमिंग इनटू समथिंग लाइक 73.24 एंड देन इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि डेसिमल वगैरह अगर आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है. ठीक है, एंड देन इट इज मेंशन्ड इन टीटा बेस्ड कि कितने डेसिमल तक आपको आंसर लिखना है. प्लीज मेक श्योर यू आर रीडिंग दैट थिंग क्योंकि डेसिमल का अगर आंसर है तो वहाँ पे मेंशन्ड होगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट थिंग. ऐसा नहीं कि 2 डेसिमल तक लिखना है, आप 3 लिख रहे हो या 1 ही लिख रहे हो. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दैट. नेक्स्ट इज टीटा बेस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप बिंदास अटेम्प्ट कर सकते हो. गलत भी हो गया तो देयर वोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, बट एमसीक्यू में ऑफ कोर्स यू हैव योर नेगेटिव मार्किंग का प्ले. ओके, next is topics to cover. So what I've done is I've distributed the topics into the 4 categories. Okay, I'll say majorly 5. First is arithmetic, फिर geometry, algebra, then number system or modern maths. तो majorly if you see I have distributed it according to the weightage. तो आप देखते होगे कि arithmetic का सबसे ज़्यादा weightage आता है आजकल. तो arithmetic I've put in at the top, फिर geometry, फिर हमारा algebra. So geometry and algebra mix, they have the question around 4 to 6 मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस तो इनके आसपास होते हैं. एंड देन नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट राइट. सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन प्लान होने वाला है आगे जो हम देखने वाले, दैट विल क्लियरली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सेक्शंस. ओके, जैसे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. So when we talk about how to prepare, so guys, this is majorly if I've written like non-engineers and weak section, this is because there are a lot of students जो non-engineers है, जो maybe from commerce background or science background, say BSc or maybe B Farm background, उनको बहुत दिक्कत आती है quants में, and then they are very much afraid of this section. So guys, don't be afraid. I being from a non-engineering background, how I prepared, I managed to score really well in quants. I'll tell you the strategy, and let's get started, guys. सो फेज वन हम स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द बेसिक्स टू एडवांस्ड, एंड आई हैव पुट इन 60 days as the number of days that are required. Okay, so this is a rough estimate. 2 महीने का टाइम approximately will be finishing with our phase one. Okay, so phase one में what exactly we'll be doing, let's look at it. तो गाइज फर्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्पीड मैथ्स एंड कैलकुलेशंस, तो आपका शुरुआत कर सकते हो जहाँ पे आप स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स या फिर जल्दी से ओरल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, दिस यू कैन प्रैक्टिस, अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट यू कैन स्टार्ट विद योर नंबर सिस्टम. यहाँ पे नंबर सिस्टम से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है. देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नंबर्स, types of numbers, then getting into your HCF, LCM concepts, right? फिर factorial concepts, जो basic concepts है जो हमने बचपन में भी सीखे थे. So you can start with that. Along with that, then we'll be starting with our most important part, which is arithmetic की concepts. Okay, so start with concepts of arithmetics. अगर आप मुझसे पूछते हो कि एक चैप्टर arithmetic का कितने दिन में खत्म होता है, I'll say maximum 4 to 5 days में you'll be covering with your concepts with all the videos that you will be watching, या कहीं पे आप coaching join कर रहे हो तो you'll be able to understand that. Along with that, you will be also able to practice certain questions in that 4 to 5 days. Okay, so if you ask me कि कितने questions practice होनी चाहिए, so guys,
L1 एंड L2 यू माइट बी अवेयर, आप कुछ रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, लाइक अरुण शर्मा की अगर आप यूज कर रहे हो. सो देर इज लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ऑफ डिफिकल्टी, राइट. सो बहुत सारे बुक्स में ऐसे L1 एंड L2 डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. तो मेजरली L1 एंड L2 इंडिविजुअली 100 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इट वुड बी बेटर फॉर यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो मेजरली इफ यू सी द अरिथमेटिक का पार्ट 4 to 5 days में खत्म हो जाता है. इनिशियल 2 days फॉर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटीज एंड बाकी के 2 से 3 दिन में आप ऑफकोर्स 150 से 200 एग्जाम्पल्स आराम से सॉल्व कर सकते हो. आई हैव रिटन L1 एंड L2 ओनली गाइस, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो. अगर आपका कॉन्स बहुत ही वीक है और L2 आपको अभी नहीं करना है तो आप वेट कर सकते हो. यू कैन जस्ट प्रैक्टिस विद द L1 कॉन्सेप्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज योर ज्योमेट्री पार्ट. तो अगर ये होने के बाद इफ यू वांट टू लाइक स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ज्योमेट्री. आई हैव रिटन 10 to 12 days. तो मेजरली आपका ज्योमेट्री का पार्ट 10 से 12 दिन में खत्म हो जाता है. ज्यादा वास्ट नहीं है ज्योमेट्री, फॉर्मूलाज का गेम है सारा. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा फॉर्मूलाज, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन कॉन्सेप्ट्स. बट इफ यू नोटिस प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखते हो, काफी सारे क्वेश्चंस देखते हो, तो सिमिलर फॉर्मेट होता है ज्योमेट्री का. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आराम से आ जाएगी. तो ज्योमेट्री बहुत लोगों को थोड़ा दिक्कत लगता है, क्रिटिकल लगता है, बट इफ यू आर एबल टू draw the diagram properly, understanding the question, and along with that if you are able to remember the formula, तो I don't think so geometry इतना difficult ball game है. ठीक है, so 10 to 12 days में you will be able to solve a lot of questions of geometry along with the theory. तो majorly theory बहुत नहीं होती है geometry में. It's more about कि आप question solve करते करते कैसे आप आपका framework या flow of question कैसे develop कर रहे हो. And nextly geometry के भी L1 and L2 try to solve at least 100 including both L1 and L2 for geometry. Okay, L2 के बहुत क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में. इट इज मेजरली टुवर्ड्स L1 एंड मे बी अ बिट अबव L1. ओके, तो दिस इज द फेज 1 का प्लान. फेज 1 का प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप ऑलमोस्ट इसी लाइक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम के बल पे आप 95-97 परसेंटाइल ला सकते हो. स्टूडेंट्स who have their arithmetic as a strong section, और जो स्टूडेंट्स वीक है मैथ्स में, ओके, दोज हु आर वीक इन देयर क्वांट्स, गाइज आपके लिए अरिथमेटिक विल बी अ सेवर. तो आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करो. ओके, ज्योमेट्री पे भी जाओ. ज्योमेट्री को एज आई सेड थियरी ज्यादा नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. तो ये दो चैप्टर्स आपको 90-95 प्लस पुश कर देंगे. Next is your phase 2. Phase 2 should be around 30 to 40 days. So let's see what we will be covering with this. Start with algebra. Algebra में हमने topics list कर दिए है, but for non-engineers you should focus on functions and logs. बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स को फंक्शंस एंड लॉग्स में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज दे हैव नॉट डन इट एवर इन देयर लाइफ. इंजीनियर्स यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दे वुड हैव प्रैक्टिस्ड इट. ठीक है, बट गाइज जस्ट रिमेंबर लॉगरिथम एंड फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअल कैट में, दे आर वेरी इजी. सो इफ यू आर समवन हु इज अ नॉन इंजीनियर एंड इफ यू आर फीलिंग कि मुझे तो पता ही नहीं कॉन्सेप्ट्स, गाइज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर. आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो. यू कैन जस्ट गेट द क्लैरिटी विद सम ऑफ द गुड वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन प्रैक्टिस द एग्जांपल्स. बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. सो डोंट फॉरगेट to do these topics, because I have seen a lot of non-engineers skipping these topics and then suffering heavily in the end. कभी कभी arithmetic अगर टफ आ जाता है तो logarithm and functions आपको सेव कर सकता है. तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दैट. L1 के मेक नॉन इंजीनियर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि L1 के ही क्वेश्चंस फर्स्ट गो में सॉल्व करो. 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो फॉर अलजेब्रा. डोंट गो फॉर L2 इतने जल्दी बिकॉज यू विल फेस इश्यूज इनिशियली. तो इसीलिए ट्राई L1 विद 200 एंड ट्राई टू गेट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मोर. नेक्स्ट इज मूव टू मॉडर्न मैथ्स. एंड पार्ट में आप मॉडर्न मैथ्स पे आ सकते हो क्योंकि मॉडर्न मैथ्स पे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ओके, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे. सो मॉडर्न मैथ्स में अगेन आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल दी टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग. ओके, अगेन वही सेम, इफ यू सी मॉडर्न मैथ्स में वही सेम टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो अगर कुछ इनिशियल आप टाइप प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा थियरी है नहीं. ओके, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है टू रिमेंबर, कुछ बेसिक ट्रिक्स है टू रिमेंबर, एंड देन यू विल गो थ्रू इट. L1 again modern maths के लिए भी L1 100 questions. If it is done then you can go for L2, वरना L1 is enough for the phase 2 of your preparation. And finally start repeating.
ये साइकिल जैसे ही खत्म हो जाती है आपके पास फिर भी 1.5 से 2 महीना बचेगा. If it is the case, then please start revising and then start moving to L2 levels of all the chapters that you have seen. फिर आपका जो 4 से 5 दिन एक चैप्टर को लग रहा था उसको आप सिर्फ 1 या 2 दिन मैक्सिमम देना पड़ेगा आपको. Along with that, every weekend make sure कि आप जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो उनकी जो आप बुक मेंटेन कर रहे हो, you're just revising that thing. We'll come on to that thing also. नेक्स्ट इज योर सोर्सेस. क्या सोर्सेस से प्रैक्टिस कर सकते हो? ऑनलाइन फ्री मटेरियल काफी अवेलेबल है, ठीक है. कैट रेफरेंस बुक है, ओके, निशित सिन्हा, देन अरुण शर्मा, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज बुक्स. देन प्रीवियस ईयर पेपर, खास करके अलजेब्रा के लिए, अलजेब्रा में जैसे मैंने बोला फंक्शंस, लॉगरिथम, नॉन इंजीनियर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. मॉक्स तो आप दे ही रहे होगे या फिर अभी स्टार्ट करोगे तो कोई सेक्शनल मॉक देगा. सेक्शनल मॉक्स अभी से यू कैन स्टार्ट, लाइक हफ्ते में 2-3 सेक्शनल तो दे ही सकते हो. फुल लेंथ इट इज अप टू यू, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है. ओके, एंड देन बैंकिंग मटेरियल फॉर अरिथमेटिक. जैसे मैंने बोला कि अरिथमेटिक हैवी आता है पेपर, 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो अरिथमेटिक का बेस्ट सोर्स होता है गो फॉर योर बैंकिंग वेबसाइट्स. बैंकिंग वेबसाइट्स पे बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग अरिथमेटिक. ट्राई सॉल्विंग देयर, जो बैंकिंग के मेंस लेवल क्वेश्चन है वो सॉल्व करो. दे आर रियली गुड लेवल, L2 L3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट मटेरियल टू. लेट्स कम डाउन टू द इश्यूज. तो जो इश्यूज स्टूडेंट्स फेस करते हैं, पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग. यू माइट हैव नोटिस्ड एज अ पर्सन, यू विल रिलेट टू इट, कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, मतलब व्हेन यू सिट फॉर योर मॉक और सेक्शनल एंड व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यू आर नॉट एबल टू राइट इट डाउन या मेक या गेट द क्वेश्चन प्रॉपरली. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है. तो गाइज यू हैव टू, व्हेन यू आर सॉल्विंग, व्हेन यू आर मेकिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जब इनिशियली सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक फ्लो मेंटेन कर रहे हो. व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नोट डाउन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप वाइज अगर आप जाते हो तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की कोई दिक्कत होगी. फियर सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जहां पे हम कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर को फियर करते हैं, देन वी आर नॉट इवन लुकिंग एट इट. वो इजी भी होगा फिर भी विल स्किप इट. इवन ड्यूरिंग माई टाइम्स इनिशियली आई हैव टू डू द सेम थिंग. अगर फंक्शंस आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो आई यूज्ड टू स्किप डायरेक्टली विदाउट देखते. फिर देन लेटर आई रियलाइज ऐसे तो नहीं चलेगा. व्हेन आई प्रैक्टिस देन आई रियलाइज कि इतना तो डिफिकल्ट था नहीं, राइट. सो रिमूव द फियर. इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है जितना लोगों ने इसकी हाइप करके रखा है. ओके, नेक्स्ट इज विच क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड स्किप. वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज अ कैट एग्जाम, दिस इज नॉट योर नॉर्मल अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम. यहाँ पे आपको स्किप करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप वहीं पे अड़े रहे और आपका टाइम वेस्ट कर दिया, देन यू विल एंड अप स्कोरिंग लेस या नेगेटिव मार्क्स. सो बहुत जरूरी है आपके स्ट्रेंथ्स के और वीकनेस के अकॉर्डिंगली आप क्या सॉल्व कर रहे हो और क्या स्किप कर रहे हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आर्ट दैट यू नीड टू लर्न. देन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स को? टाइम स्पीड में, टाइम वर्क में, फंक्शंस में, लॉगरिथम में, ज्योमेट्री में, रेशियोज में. गाइस दीज आर सम ऑफ द टॉपिक जो थोड़े हैवी है, जिनको ज्यादा आपको अटेंशन देना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट दी नॉन इंजीनियर्स. ओके, सो गाइस मेक श्योर यू आर पुटिंग फोर्स ऑन दिस टॉपिक्स. और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. एंड देन प्रीवियस टॉपिक्स वैनिश्ड, सबसे बड़ा इशू. मैंने 10-15-25 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, जो इनिशियल 1-2 टॉपिक्स थे वो तो मुझे याद ही नहीं. अभी व्हेन आई एम सॉल्विंग आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर. इसके लिए भी क्या करना चाहिए? आई कम ऑन टू दी हेल्पफुल टिप्स नाउ. सो व्हाट शुड बी दी हेल्पफुल टिप्स? प्रैक्टिस क्वेश्चन एज पर कॉन्सेप्ट. तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पूरा थियोरी रट लेते, ओके, एंड देन दे डायरेक्टली गो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो ऐसा नहीं करते. हर एक कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 10 to 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए. मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व ऑन ईच कॉन्सेप्ट, ताकि वो एप्लीकेशन आपको समझ में आ सके उस चीज का. नेक्स्ट इज मेक यूज ऑफ ऑप्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे भी ऑप्शंस दिखती है ट्राई टू गो रिवर्स. उससे काफी टाइम बचता है और आपको एक क्लैरिटी भी आ जाती है, ठीक है. सो ऑप्शन मेकिंग यूज ऑफ ऑप्शन, एलिमिनेशन टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट इन कॉन्ट्स. देन हैव योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नोन. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो, जैसे मैंने बोला था कि स्किपिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आपको स्किप करना भी आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए इनिशियली मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है जिसपे मैं स्कोर कर सकता हूँ. इज इट अलजेब्रा, इज इट ज्योमेट्री, इज इट अरिथमेटिक, इज इट मॉडर्न मैथ्स. अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट. नेक्स्ट इज फोकस ऑन अरिथमेटिक. हमने ऑलरेडी देखा है, और गाइज फॉर दोज हु आर नॉन इंजीनियर्स, आपके लिए ये काफी आसान होगा, क्योंकि दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव डन ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज. तो हर किसी ने अरिथमेटिक तो किया ही है. बेसिक डेली मैथ्स होता है, तो अरिथमेटिक पे बहुत ज्यादा फोकस करो. सिर्फ अरिथमेटिक ही आपको 80+ परसेंटाइल पे लेके जा सकता है, ट्रस्ट मी. मास्टर L1 एंड देन L2. पहले L1 मास्टर करो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, देन गो फॉर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2. अवॉइड लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 गाइस. डोंट गो फॉर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, एंड देन दैट यू नीड टू स्किप. उस पर अगर टाइम वेस्ट करोगे, पहले तो आंसर आएगा नहीं, और आ भी गया तो वो इतना टाइम ले लेगा और वो सही होगा कि नहीं आपको भी नहीं पता.
तो मेक श्योर अभी के लिए एटलीस्ट जब तक आप डिसेंट स्कोर नहीं कर रहे हो मॉक्स में, लेवल 3 को कंप्लीटली अवॉइड करना है. डोंट गो फॉर लेवल 3. दिस इज माय गोल्डन एडवाइस. अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि नहीं लेवल 3 तो करना पड़ेगा, नो, प्लीज ट्राई सॉल्विंग L1 एंड L2 ओनली. रिवाइज ऑन वीकेंड्स. कैसे रिवाइज करना है? इफ आई हैव रिटन द लास्ट पॉइंट, हैव फॉर्मूला बुक और शॉर्ट बुक. तो शॉर्ट बुक आप मेंटेन कर सकते हो, ओके, जहाँ पे आप ट्रिक्स मेंशन कर सकते हो, फॉर्मूलाज, क्वेश्चन टाइप, कोई आपको नया क्वेश्चन टाइप लगा तो जस्ट यू कैन जस्ट फोटो लेके आप उसी में नोट कर सकते हो, या कि यू कैन हैव अ सेपरेट नोटबुक या वर्ड डॉक्यूमेंट मेड और उसी में आप कॉपी पेस्ट करे हो, ताकि आप जब वीकेंड को रिवाइज करे हो आधा एक घंटे में यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू डिड द कंप्लीट होल वीक, सो दैट आप भूल नहीं रहे हो. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ड्यूरिंग आवर सेशन, जब हम कैट के सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स की, वी गिव दी स्टूडेंट्स दिस थिंग. अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे रहा है, देन यू नीड टू मेंटेन दिस थिंग, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉन्ट्स. So that's all from today's video, guys. Stay tuned for the next video related to CAT preparation. I hope you got the clarity regarding how to approach the quant as a section and score really well with respect to your quants. Make sure that you are following the strategy that is being told, the tips and the issues that you need to avoid. And you can follow us at toponicus_MBA, and you can reach out to us, guys, if you have any queries regarding CAT preparation. You can just reach out to her. We'll connect you with the respective mentors and they'll help you sort the queries. All the best, guys.